Good morning, students. Today I am going to proceed the same chapter, The Ailing Planet, which has been written by Nani Palkiwala. I am going to deliver the last lecture connected to the same chapter. I have to begin from page number 46 and look at para number 4. The rich get richer and the poor beget children. Now here there is a contrasting concept between the rich and the poor. The rich are becoming more rich. But here the irony condition is there. The poor are only producing children because they think that here if they would have a more children, it means they think that they would be the more source of earning. That's why they produce children. The meaning of beget is here produce. Now the result is that here the things condemns them to remain poor. Now because of that reason, when they produce more children, it never meant that they would be able to gain more money from these children. It means that here the more people would be unemployed. These things condemn them to remain poor. The result is that here they are never come out from this poverty. More children doesn't mean more workers. But merely more people without work. I told earlier now here, more people, more children does not mean more workers. But we can come to know that here more people without work because they would be unemployed and it would affect the whole GDP rate of our India. It is suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized. But it is usually the step is taken that here human beings must be treated like cattle, like animals, and they must be compelled, and the procedure must be adopted for compulsory sterilized, so that they are not able to produce more than 2 children. But there is no alternative to control the population or family planning without introducing an element of caution. Now here caution means a compulsion. Now the result, if we are able to compel the situation, the result will not be good. We must introduce one thing that here, instead of compelling the situation, the person must have enough thinking that they must control this system and there must be family planning. The choice is really between control of population or perpetuation of poverty. Now there are two choices in front of us. The first choice या तुम क्या करें, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें और या हमेशा के लिए तैयार हो जाइएगा गरीबी के लिए. द मीनिंग ऑफ परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, इट मीन्स दैट हियर if we did not control on population, the result is there India's situation, Indians economic situation will be same. And if we are able to control on population, the result may be obviously positive, because in such means the more people, the more children means be more workers. It can never may be there कि more children means here more workers. More children means here the more people will get unemployed. The population of India is estimated to be 920 million. It is according to the data of 1994. कि जहाँ तक इंडिया के पॉपुलेशन की बात की जाए तो it at the time it was around 920 million, more than the entire population of Africa and South America. You know very well that here 7 continents are there and we are the part of the continent Asia. लेकिन अगर इंडिया की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए, इंडिया की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया जाए, अगर एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की पॉपुलेशन को, दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो शायद फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. Then no one family or with the condition of India would doubt that the hope of the people would their hungry heartments unless population control is given the topmost priority. Really it's a point to be aware the human being कि अगर हमने समय रहते हुए पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करा तो यहाँ पर
रिजल्ट वुड नॉट बी गुड। कि जो गरीब लोग जिनका जन्म उस गरीबी में हुआ है, वो सिर्फ क्या है, वो भूखे ही उसी सेटलमेंट्स में, उसी हट्स में, उसी झोपड़ी में ही मर जाएंगे। तो इट मीन्स दैट ईयर we must do one thing here. First of all, we have to give control. First of all, we must give priority to population control. We must not think about ourselves. We must think about our own India. कि तभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। You know also very well that your China's population is more than India, but China has instantly taken a step. There's a compulsion कि only the couples have a right to bear to only one child. This compulsion, but in India, this type of step has not been taken yet. The population, for the first time in human history, we see a transcending concern. Now, first time in human history, one thing has been seen that here, transcending concern means going beyond narrow interest. कि अभी तक सिर्फ हम अपने बारे में सोचते थे। अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन has come, a great change has come. The survival not just of the people, but हमें सिर्फ यहाँ पर अपने लिए नहीं जीना है, but we have to survive for our the earth, for here the earth or the planet. अब हमें अपने अर्थ के लिए जीना है। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर अर्थ। इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो हम कंटिन्यूस नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करते जाएंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थ इससे सफ़र होगी। द टाइम हैज़ कम, वी मस्ट थिंक अबाउट आवर ओन प्लैनेट, वी आर द पार्ट ऑफ इट। Then we have begun to take a holistic view of the very basis of existence. The time has come कि हमें कम से कम इस holistic view के बारे में सोचना चाहिए, इस complete view के बारे में सोचना चाहिए, इस अर्थ के existence के बारे में। The environmental problem doesn't necessarily our decide. कि we know very well that as we are harming the nature, the result may be disastrous, and we are not able to survive maybe there, or it can give direct indication to of death. डिमाइस मीन्स योर डेथ। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं हुए, अभी तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से हम नेचर को हार्म कर रहे हैं ये सीधा डायरेक्ट इंडिकेशन डेथ का है, लेकिन अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो उसका रिजल्ट हम सबको पता है कितना डिजास्टर्स होगा। लेकिन ये अपने आप में फ्यूचर की भी तो है। अगर हम अलर्ट हो गए तो आगे की जनरेशन सेफ भी तो रहेगी। तो इसीलिए से जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है ये हमें सिग्नल नहीं करती है हमारे डेथ का, बल्कि हमें अवेयर कर रही है कि हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए इस चीज़ों पर, क्योंकि ये फ्यूचर की भी है, तभी हम फ्यूचर में जा पाएंगे। द इमर्जिंग वर्ल्ड विजन हैज़ assured in the era of responsibility, very important. The time has come, we must come to know about our duty, our responsibility. This era has been called the era of responsibility. To save the earth, it is not the responsibility of mine. This is not the responsibility of you. This is the responsibility of each and everyone. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक पर्सन के करने से कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ अ हॉलिस्टिक व्यू। ये हॉलिस्टिक व्यू है, सबको सोचना है, ओवरऑल कंसेप्ट के वे में सोचना है। एक इकोलॉजिकल व्यू है जिसके बेस पर हमें पूरी इकोलॉजी को कंट्रोल में करना है। सीइंग द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड को ये नहीं सोचना कि वी हैव टू स्टार्ट टू सेव अवर इंडिया, कि हमें सब सिटीजन्स को, जो भी सिटीजन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है उसे समझना चाहिए कि मेरी कंट्री का ही मैं पार्ट नहीं हूँ। उसे समझना चाहिए ये पूरे मैटर पूरे वर्ल्ड का है, पूरे प्लेनेट का है। द वर्ल्ड एज इंटीग्रेटेड होल, उसे समझना चाहिए पूरा वर्ल्ड अपना है, ना कि केवल मैं इस कंट्री का पार्ट हूँ, बजाय कि देन आर डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कि बजाय कि हमें सोचने कि मैं अमेरिका का हूँ, मैं जापान का, मैं चाइना का हूँ, इस ऐसा सोचने के बजाय, अपने आप को अलग अलग पार्ट्स का सोचने के बजाय हमें क्या सोचना है, आई एम द सिटीज़न ऑफ द होल वर्ल्ड, मैं पूरे वर्ल्ड का सिटीज़न हूँ। तो इन सच ए वे वी हैव टू ट्राई टू द सेव आवर होल अर्थ और द होल वर्ल्ड। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल to play in this new era of responsibility. Industry really plays a very important role
In the present era means the new era of responsibility। इंडस्ट्री बहुत मेन रोल प्ले करती है। आप जानते भी हो इंडस्ट्री की वजह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन और सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इफेक्टेड होगा अगर हर कोई किसके व्यू को माने, अगर हर कोई यहाँ पर इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, कि अगर मान लीजिएगा यहाँ पर जो ड्यूपॉन्ट है नेम ऑफ कंपनी में भी देयर, उसके जो चेयरमैन हैं अगर उसके कंसेप्ट को हर कोई एक्सेप्ट करे, हर बिजनेसमैन इस व्यू को माने, द व्यू दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, तो दैट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। अब यहाँ पर हु द चेयरमैन, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, वो 5 years ago मतलब 1989, कि मिस्टर एडगर एस वुलार्ड हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, Mr. Edgar S. Woolard 5 years ago declared himself to the company's chief environment officer। उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर अनाउंस करा और उन्होंने कहा, ही सेड, ये वर्डिंग है मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की। उन्होंने कहा, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance, कि अगर हमें आगे तक एग्जिस्ट करना है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के तौर पर, द टाइम हैज़ कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट कंडीशन में एक बहुत बड़ा एक्सीलेंस परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि हमारा डेवलपमेंट भी हो और हम नेचर को हार्म भी ना करें, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कंट्रोल ना करें। अगर पहले मान लीजिए 100% प्रॉफिट हो रहा था तो 50% प्रॉफिट बेशक कर लो, लेकिन क्या करना है, हमें लिमिटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया गया है कि चाहे डेवलपमेंट लिमिटेड कर लिया जाए, प्रोडक्शन 50% कर लिया जाए, लेकिन क्या है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो। अगर हर कोई बिजनेसमैन डेवलपमेंट के बारे में या पैसे के बारे में इतना ना सोचे, एनवायरनमेंट के बारे में ऐसा सोचे, तो शायद रिजल्ट सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अभी प्रेजेंट एरा में यू नो वेरी वेल दैट ईयर 3 years से लॉकडाउन चल रहा है, तो यू नो वेरी वेल दैट ईयर अबाउट दैट कि कितना पॉल्यूशन कंट्रोल में है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट कैन बी सीन हियर। अब द लास्ट पैरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर, कि यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट मार्गरेट थैचर के द्वारा करी गई है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उनकी, तो वी मस्ट कम टू नो हियर कि ये उन्होंने व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम शी मेड मैनी स्टेटमेंट एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टेटमेंट दैट ईयर। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उनकी जो उन्होंने यहाँ पर करा है। ऑफ years of prime ministership has passed so decisively into the current coin of English usage. During her prime ministership, she made many statements. But this statement that I am going to tell now here, this statement, this English usage, this English words really have a great impact on human mind. उनका एक निर्णयात्मक जो निर्णय रहा, डिसाइसिवली वे में जो निर्णय रहा, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करा ह्यूमन माइंड को, इतने ज़्यादा सुंदर वर्ड्स में, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स में प्रेजेंट करा उन्होंने। तो व्हाट आर द लाइन्स आर देयर, व्हाट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर देयर, वी मस्ट ऑब्जर्व दैट हियर। क्या लाइन है, नो जनरेशन एज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम की जो जनरेशन है, जिस एज से हम बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी जनरेशन को फ्री होल्ड नहीं है, किसी भी जनरेशन को यहाँ पर परमानेंट राइट नहीं है इस लैंड पे रहने का, कि हमारे आने से पहले हमारे पिछली जनरेशन रहती थी, उससे पहले पिछली जनरेशन रहती थी, अब आगे और कोई जनरेशन आएगी।
कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी जनरेशन ये नहीं कह सकती कि मैं हमेशा के लिए रहूँगी। तो इसलिए किसी भी जनरेशन को परमानेंट यहाँ पर राइट नहीं है, परमानेंट ऑक्यूपेंसी नहीं है इस लैंड को एक्वायर करने की, हमेशा रहने की। इसलिए वी आर लाइक अ टेनेंट्स, हम किराएदार के लिए, किराएदार की तरह है, हमें कुछ टाइम स्पेंड करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू लीव दिस अर्थ फॉर एवर। तो इसलिए हमें जब तक हम रहते हैं इट बिकम्स आवर ड्यूटी, तो हमारी ड्यूटी बनती है इस अर्थ को टेक केयर करना। तो ये बहुत ही सुंदर वर्ड्स कहे गए हैं किसके द्वारा, मार्गरेट थैचर के द्वारा, कि हमें समझ लेना चाहिए कि हमेशा परमानेंटली इस अर्थ पे नहीं रहना, हम जितना समय भी रह रहे हैं उसको हमें अर्थ को बचाने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम एक किराएदार की तरह रह रहे हैं कि वी आर लिविंग लाइक अ टेनेंट्स। तो एक किराएदार की तरह रह रहे हैं, हमारा परमानेंट होल्ड नहीं है इस पर। वी हैव नो इनहेरिट दिस अर्थ, आगे देखिएगा, उसे विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, कि हम यहाँ पर लीज की फॉर्म में रह रहे हैं। जैसे लीज में होता है ना कि लीज का प्रोसीजर क्या होता है, द राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड फॉर सम टाइम, कि हमें पूरी तरह से अधिकार मिल जाता है उस लीज में। जैसे पगड़ी पर कोई चीज़ दे दी जाती है, कुछ समय के लिए उस पर तुम्हें पूरा राइट है, आप कुछ भी कराओ। अब ऐसे जब तक हम यहाँ पर रह रहे हैं अर्थ पर, हमें पूरा राइट है, हम कुछ भी करें। तो कम से कम जब तक हम इस अर्थ पर रह रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको बिल्कुल भी हार नहीं रहने दें। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अर्थ पर उस पर्सन का रोल है, अर्थ पर उस पर्सन का राइट है, सबका इस अर्थ पर राइट है। तो हम जब तक रहते हैं इस अर्थ पर तो हमारी ड्यूटी बनती है हम इसको टाइम टू टाइम रिपेयर कराते रहें, जैसा कि हम अपने घर को टाइम टू टाइम रिपेयर कराते रहते हैं। इन द सेम वे, in the words of Mr. Lester R. Brown, Lester R. Brown, the same person who has written the book Global Economic Prospect, he is the same person. अब उन्होंने भी बहुत अच्छी लाइन कही है, we have not inherited this earth, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अर्थ हमें हमारे फोर फादर से एक लेगेसी के तौर पर मिली है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमने ये अर्थ उधार ली है, किनसे, आगे आने वाले जनरेशन के लिए। और हमें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है वी हैव टू गिव इट बैक, हमें वो चीज़ वापस देने की। हमें ये नहीं समझना है कि हमें अर्थ, कि वी हैव गॉट दिस अर्थ एज अ लेगेसी फॉर्मेशन फ्रॉम अवर फोर फादर्स, बट वी हैव टू थिंक इन सच ए वे कि बोरोड this earth from our children and it's our duty to give them back as safe, और हमारी ड्यूटी बनती है उन्हें हम सेफ दें। तो हम, जबकि चिल्ड्रन आगे आने वाले हैं, वो क्यों कहा गया है, बल्कि जैसे हम जब किसी चीज़ पर्सन से चीज़ उधार लेते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें उसे वापस देने की। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हमने ये अर्थ अपने फोर फादर्स से नहीं मिली, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिली है, बल्कि हमें सोचना चाहिए ये अर्थ हमने उधार ली है, हमने आगे आने वाली जनरेशन से, और हमारी ड्यूटी बनती है हम उन्हें सेफ रिटर्न कर दें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू मस्ट मार्क दिस लाइन। ओके बेटा।